Okay, thank you. Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and with this beautiful morning, we'll start our current affairs. And as usual, I'll start my current affair with a quotation. So, this quotation is said by Viktor Frank, and what he says that when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves, right? So, let me start today's class with a bitter truth, but it's the truth of life. So it's not a sweet one, but a powerful one. So there will be a phase in your life when you'll sit alone, no friends around you, no family member around you, no one to motivate you. Sometimes even your parents won't fully understand that what you are going through, what you are feeling, right? And you may cry, you may feel tired, you may feel like asking that why am I doing all this? Whatever steps I'm taking, are they even correct or not? है ना? But you have to listen and understand this very carefully. That phase does not mean that you're weak. That phase means that you are being, prepared. Because there comes a moment in your life where, in everyone's life, in fact, right, where it is only you versus you. So no one is, prepared for this. No encouragement is there, no guarantee is there. And this is the moment where you will be thinking, right? This is the moment where you are built, right? So this is where mental strength is born. So positivity does not mean life will be easy. Positivity means that you will be not break even when life is hard. Just like current affairs, not every news is positive, not every policy is perfect, not every bill that is passed is, valuable, right? Not every situation is fair. But understanding it calmly, rationally, and courageously is exactly what makes you different from the crowd. And that's exactly how you have to deal with the situation as well. है ना? So remember this, when you feel alone, you are not failing. You are training yourself. है ना? You are training yourself to stand strong. And if you can face yourself honestly, you can face any examination, right? Any challenge, any responsibility tomorrow, right? So there will be a moment when you will be sitting on that bench, when you'll be giving your prelims, mains, है ना? You will be sitting there with this concept of you versus you. And that's where you have to show your encouragement. That's where you have to show the positivity. So you have to build yourself in that way. And this is the time, this is the phase where you have to understand yourself first, right? Now with this clarity and with this strength, let us begin with today's current affair. है ना? चलो. Let's understand what our first current affair is saying. So Modi wants to make me happy claims from Beck's senator claim that India cut Russian oil to bring tariffs down. तो ये उन दो दोस्तों की कहानी है जो दावा करते हैं that they are best friends, but then at the back hand something fishy always comes up. चलो अब इमेजिन करो there are like two big countries, ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की हम लोग बात करेंगे, जो साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में, जैसे कि ट्रेड हो गया, global issues हो गए, security हो गई, right? Now think of a third issue that is like causing tension between these two countries, ठीक है? That is oil from Russia, ठीक है? अब इसके साथ में पूरी कहानी समझेंगे कि ये ऑयल की कहानी क्या है, ठीक है? बार-बार ये ऑयल क्यों आ जाता है बीच में, ठीक है? So this is like the mediator we have between Russia and between India, ठीक है? Now when we talk about this, ठीक है, तो क्या हुआ कि after good morning विकास, तो क्या हुआ after Russia's invasion of Ukraine, many Western countries led by the United States tried to stop buying from Russian oil to pressure Russia कि वो war खत्म कर दे against the Ukraine, है ना? But India continued buying Russian oil. क्यों? क्योंकि वो basically it helped reduce fuel cost also, और यहाँ पे उन्हें source energy जो है it was like giving to those people and for the economy as well, ठीक है? तो क्या हुआ कि एक दिन US Donald Trump, right, was talking to reporters while traveling back to Washington, right, and he said something, right? He said that the Prime Minister Narendra Modi knew that Trump was unhappy about India's Russian oil purchases, right? And Trump even called Modi a good man, right? But made it clear that the United States was not pleased with the act of India, ठीक है? तो यहाँ पे there is a two concept, two policies that we have to understand. और मैं पहले बता देती हूँ, whenever some leader, political leader is saying something, right, there is a backhand story of it, ठीक है? और वो story ही नहीं, there is a meaning also, right? So first of all, we'll try to understand the concept of oil. We'll try to understand this good concept that Trump is coming up with, है ना? And what exactly this, policy is, ठीक है?
सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने एक चीज बोली कि इफ इंडिया डज नॉट कोऑपरेट ऑन द रशियन ऑयल इश्यूज, द यूएस कुड रेज टैरिफ्स ऑन इंडिया इंपोर्ट्स वेरी क्विकली, राइट? So we know what tariff is. A tariff is a tax country puts on goods coming in from the another country, है ना? जब वो ऊपर चले जाते हैं, when it goes up, so India products becomes more expensive in the US markets, है ना? और India exporters जो है वो lose कर सकते हैं अपना business, right? So Trump ने एक और hint दिया कि US may use tariffs as a tool to push India to its energy trade policy, right? So tariffs are part of economic and trade power, right? That big countries sometimes use to influence the decision of other countries, है ना? इतनी कहानी तो सबको पता है ना? चलो, अब क्या हुआ है कि आसान शब्दों में अगर हम समझें कि अभी न्यूज किस बारे में है और इसको कनेक्ट करेंगे कि पिछली हिस्ट्री क्या थी, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प told reporter that he was unhappy about India's purchase of Russian oil, right? And he also said that Prime Minister Modi understood this and warned that US could quickly raise tariffs on Indian goods if basically they doesn't help on this issue. So this reflects rising tension in trade and energy policies between whom? Between US and between India. ठीक है? अब न्यूज को समझने से पहले ये समझ लेते हैं दैट व्हाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज। ठीक है, कंसेप्ट क्या है इसका, व्हाट सब्जेक्ट्स दिस न्यूज इज कनेक्टिंग टू अस। चलो तो पहला तो इट इज कनेक्टिंग अस टू जीएस पेपर 2। ठीक है, इंडिया यूएस के रिलेशन पता चलेंगे, स्ट्रेटजीज ऑटोनॉमी के बारे में पता चलेगा, यूज ऑफ टैरिफ्स एंड डिप्लोमेसी के बारे में पता चलेगा, राइट? यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको जीएस 3 में, जीएस 3 में आपको पता चलेगा एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड और टैरिफ्स के बारे में, इंपैक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन एक्सपोर्टर्स, ऐसे और एथिक्स में नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस मॉरल डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक कोरिलेशंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स आल्सो विल बी अंडरस्टूड हियर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। So what happened? What Donald Trump say and why it is mattering to us? ठीक है, why this news is here? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, द फॉर्मर एंड अगेन इन्फ्लुएंशियल यूएस प्रेसिडेंट, मेड अ पब्लिक स्टेटमेंट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक्ट से ही इज अनहैप्पी, राइट? जो बेसिकली वो कंटिन्यू कर रहे हैं रशिया से ऑयल खरीदना, राइट? एंड एट द सेम टाइम ट्रंप वांट दैट यूनाइटेड स्टेट्स वुड इंपोज न्यू टैरिफ्स, ठीक है, इंडियन गुड्स पर बहुत ही जल्द वो ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, एक सिग्नल है इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एज वेल, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया जो फॉलो क्या करता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना? सो दिस इज व्हाई वी आर एक्चुअली रीडिंग दिस न्यूज, है ना? एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। यूपीएससी के लिए मैटर क्यों करता है? ठीक है, चलो अब अगर हम बात समझते हैं कि रशियन ऑयल कोर इश्यू क्यों है, तो रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ था, ये ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स जो थी वो चेंज हो चुकी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, रशिया ने इन्वेड करा यूक्रेन को 2022 में। नाउ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस हो गई, यूरोप हो गई, उन्होंने इकोनॉमिकली आइसोलेट करने का सोचा रशिया को। ठीक है, और इनका सबसे ज्यादा मेजर मेथड ये था कि दे आर गोइंग टू सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल एंड गैसेस, ठीक है, और ये रिड्यूस करेंगे, बैन करेंगे इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशियन एनर्जी। ठीक है, तो आइडिया इनका बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा ये था कि रशिया अगर कम पैसे कमाएगी फ्रॉम ऑयल, ठीक है, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं होगी फंड करने की वॉर को, है ना? तो ऑटोमेटिकली जो उनका यूक्रेन पर बेसिकली जो होल्ड है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, राइट? सो दिस वाज द स्ट्रेटजी दैट बेसिकली दीस कंट्रीज ट्राइंग टू फॉलो। ठीक है, बेसिकली यूएस एंड यूरोप वर ट्राइंग टू फॉलो। ठीक है, इसकी वजह से, इसीलिए ट्रंप ने बोला कि दे आर अनहैप्पी विद द एक्ट ऑफ मोदी, राइट? नाउ अब इस पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया डिड नॉट जॉइन वेस्टर्न सैंक्शंस। ठीक है, उन्होंने इंस्टेड क्या करा, इंडिया इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल, और करे भी क्यों ना? ठीक है, अब अगर कोई चीज आपको सस्ती मिल रही है उस टाइम में बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, ठीक है, आप खरीदते हो उन्होंने जाकर, है ना? तो वही चीज उन्होंने की, दिस बेसिकली हेल्प्ड इंडिया कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑल्सो। ठीक है, और जो फूल प्राइसेस है, राइट, उनको स्टेबल करने के लिए उन्होंने खरीद लिया, अपना प्रोटेक्ट करिए इकोनॉमी को और पुअर कंज्यूमर्स को। तो इसमें गलत क्या हुआ, राइट? तो फॉर इंडिया ऑयल इज नॉट समथिंग लग्जरी, है ना? वो इसेंशियल है ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इंडिया ये आर्ग्यू कर रही है दैट आवर डिसीजन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट, नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, राइट? किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एनर्जी सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी सिक्योरिटी। कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट पहले आ रहा है, राइट? एंड देन वी आर बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स द एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, अब आई होप ये आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब समझते हैं कि यूएस अनहैप्पी क्यों है, राइट? सो आई कैन नॉट सी एनीवन ऑफ यू कमेंटिंग। तुम कुछ सोच नहीं रही हो, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है तुम्हारे, इफ आई एम टेलिंग यू स्टोरी की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है। अच्छा, इफ वी आर रीडिंग दिस, तो क्या हुआ है कि यूएस के पर्सपेक्टिव से what exactly is happening, right? What exactly is happening
कि बाइंग रशियन ऑयल इज व्हाट, इट इज हेल्पिंग रशिया अर्न मनी, है ना. सो दैट मनी में इनडायरेक्टली सपोर्ट रशियाज वॉर एफर्ट, है ना. सो यूएस को लगता है कि इंडिया का जो एक्शन है इज अंडरमाइनिंग समवेयर वेस्टर्न प्रेशर ऑन रशिया एज वेल, वीक कर रहा है वो सैंक्शन रिजीम जो इन्होंने प्लान करी है. इसी की वजह से ट्रंप ने पब्लिकली ये डिससेटिस्फेक्शन जो है उन्होंने एक्सप्रेस करी है, राइट. सो दिस इज व्हाई ही इज अगेंस्ट विद द एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. अब टैरिफ्स क्या है और क्या कहते हैं ट्रंप ने क्या क्या मेंशन करा है वो समझते हैं. तो पहले अगर टैरिफ्स को हम लोग समझे, टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज ऑन इंपोर्ट्स गुड्स, ठीक है. जैसे कि यूएस इम्पोजेस अ टैरिफ ऑन इंडियन स्टील्स, ठीक है, और उसके टेक्सटाइल्स पर, राइट. इंडियन प्रोडक्ट्स बिकम्स व्हाट, दे बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, ठीक है. यूएस में ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और इंडिया एक्सपोर्टर्स लूज कॉम्पिटिटिवनेस, राइट. सो इंडियन इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स में सफर बिकॉज ऑफ दिस. सो टैरिफ्स आर व्हाट, दे आर समटाइम्स टेकन एज इकोनॉमिक वेपन्स आल्सो, है ना. जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में देखने को मिल रहा है, right, that how basically Trump warned us, right, that if you will not follow the policy of ours, ठीक है, यूरोप की और हमारी पॉलिसीज पर नहीं चलोगे तो will increase tariffs, ठीक है. तो समटाइम दे आर टेकन एज व्हाट, इकोनॉमिक टैरिफ्स एज वेल, ठीक है. ओके, अब let's understand tariff is a foreign policy, right. Divyam, please, and so all the students, online students also, please, if you have something in mind whenever you're reading these kinds of news, make sure that you also have a perspective, your viewpoint, okay. This will help you to analyze news. I've said it before as well, reading headlines will not help you, okay. UPSC doesn't want drama, okay. They want analytical things, they want the linkage, okay. They want the keywords, right. So make sure there is something that is going in your mind, always listen to these kinds of news. चलो, ट्रम्प इज बेसिकली नोन फॉर यूजिंग टैरिफ्स, ठीक है. अगर किसी को प्रेशर करना है, किसी भी कंट्री को कोई पॉलिसी चेंज करनी है, कोई नेगोशिएशन गेन करना है, कोई एडवांटेज लेना है, राइट. सो ट्रम्प का हमेशा से ही यही आइडियोलॉजी रही है, राइट. या फिर बाय थ्रेटनिंग टैरिफ्स, राइट. सो ट्रम्प इज सेइंग व्हाट, ही इज सेइंग दैट इफ यू डोंट चेंज योर एनर्जी पॉलिसी वी मे हिट योर इकोनॉमी. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉरिजन्स. व्हाट इज इट कॉल्ड, इकोनॉमिक, right. So now why did Trump still call, अगर यही चल रहा है, because of this G5 meeting that was going to take place in India but it didn't happen, exactly. So this tells us कि एक statement, right, how much it can impact, right, exactly हमारे relations आगे के कैसे होते हैं. If you are saying something, this was not official meeting, ठीक है, this was something that was said to a reporter, ठीक है. जल्दी जल्दी कुछ statement दे दी and that's how policies, that's how basically linkage and that's how basically relation changes sometimes in politics, ठीक है. अब चलो, इतना चलते हुए भी he called Modi a good man. तो ये बहुत जरूरी है यूपीएससी के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ट्रम्प क्रिटिसाइज इंडियाज ऑयल पॉलिसी बट ही प्रेज मोदी पर्सनली. अब ये क्या दिखाता है कि मॉडर्न डिप्लोमेसी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है. यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ये सही है ये गलत है, राइट. इट्स अ बिट इट्स कॉम्प्लेक्स. तो कंट्रीज कैन कोऑपरेट ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज में, डिसएग्री कर सकते हैं ऑयल में, रशियन ट्रेड में, ठीक है. सो इंडिया यूएस का जो रिलेशन है वो मिक्स ऑफ कोऑपरेशन है, मिक्स ऑफ प्रेशर है, मिक्स ऑफ नेगोशिएशन है, राइट. सो दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग टू अस, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती क्या है, एनीवन? तो इसका मतलब होता है कि टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है. एक्सटर्नल प्रेशर से आप नहीं ले रहे हैं, यू आर टेकिंग आउट ऑन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे कि इंडिया ने किया. तो इंडिया ये प्रैक्टिस करती है कैसे, बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ठीक है, मेंटेन करके टाई यूएस के साथ में, एंगेज करके यूरोप के साथ में, ठीक है. और बेसिकली इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, ब्रिक्स का भी पार्ट है, एससीसीओ का भी पार्ट है ना. तो इसके बाद में ऐसे ही बैलेंस करके चलती है इंडिया. तो इंडिया डज नॉट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ एनी सिंगल पावर ब्लॉक, ठीक है. और ये हमेशा हमारे हिस्टोरिकल रूट्स में रही है. दिस नॉन अलाइनमेंट इज सीन स्टेप बाय स्टेप आल्सो. गुड मॉर्निंग करण, ठीक है. तो यही चीज हमें दिखाती है कि ये जैसे कि कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी भी थी, ठीक है. तो यही चीज दिखाती है कि इंडिया हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही बैलेंस करके चलती है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पावर, राइट. कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करती है फॉर दिस रीजन ओनली, ठीक है. अब अगर हम यही बात कर रहे हैं तो हमें क्या समझ में आया कि दिस स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प रिगार्डिंग इंडियाज परचेज ऑफ रशियन ऑयल, ये बेसिकली हाईलाइट करता है कि हमारा जो यूज ऑफ इकोनॉमिक टूल है, जैसे कि टैरिफ्स हो गया, ठीक है, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देखने को मिलता है. और उसके बाद में अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, दे वांट्स टू आइसोलेट रशिया इकोनॉमिकली. क्यों? क्योंकि उनका यूक्रेन वॉर से रिलेटेड इश्यू चल रहे हैं, राइट. बट इंडिया कंटिन्यूज टू इंपोर्ट रशिया ऑयल टू इंश्योर अफोर्डेबल एनर्जी, है ना, उसकी पॉपुलेशन के लिए.
अगर अब इसके पास क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास ट्रम्प की वार्निंग, राइट, ऑफ पॉसिबल टेरिफ्स, राइट। सो दिस इज द बेसिकली एपिसोड जो हमें बताता है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है, ट्रेड कैसे काम करता है, एनर्जी जो है दे आर लाइक डीपली इंटरकनेक्टेड विद व्हाट, विद बेसिकली टुडेज ग्लोबल पावर, है ना, टुडेज ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें जो है काम करती हैं, राइट। ओके, आई होप न्यूज समझ में आ गई होगी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे कीवर्ड्स आर रिटन एंड यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। चलो, क्वेश्चंस हैं एंड आई वांट आंसर्स ऑफ दीज, और ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आई होप क्वेश्चंस आर विजिबल टू यू। अब तक आंसर्स होने चाहिए थे एंड आई कैन नॉट सी अ सिंगल आंसर। अभी बताया मैंने इसका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, कैसे भूल सकते हो तुम लोग। सी, वाई सी, मैंने 20 बार बोला है कि हमेशा आंसर लिखने के बाद में मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट एज वेल, कि वो आंसर सही क्यों है, ठीक है, ताकि जिस बच्चों का गलत हो रहा है दे कैन अंडरस्टैंड। यस दिव्यम, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाई आई कैन नॉट सी आंसर्स हियर। दिव्या से सी, विकास से सी, अच्छा रीजन तो बताओ ना, व्हाई इज इट सी। अच्छा, अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इट्स एन एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस विदाउट बीइंग फोर्स्ड, ठीक है। अलाइन करते हैं बेसिकली अपनी विदाउट एनी पावर फ्लो, है ना, और बेसिकली एंगेज करते हैं मल्टीपल कंट्रीज के साथ में। और ये किसके साथ में हुआ है, ये हुआ है हमारा इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के, है ना, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट दे हैव एक्टेड, ठीक है। दे आर नॉट टेकिंग पॉलिसी और दे आर नॉट टेकिंग पार्ट विद एनी अदर कंट्री, ठीक है, किसी कंट्री के साथ में पार्ट नहीं ले रहे, दे आर बेसिकली फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ देमसेल्फ, नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हो। ओके, वेरी गुड। चलो, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अभी बताया आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, यस गार्गी। अच्छा, एक और चीज, इफ यू आर टेकिंग दिस मच टाइम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है, एंड यू आर लाइक गिविंग 2026 एग्जामिनेशन, देन आई वांट टू टेल यू दैट यू आर वेरी स्लो, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना शुरू करो, यू आर टेकिंग मोर लॉन्गर। यू ऑलरेडी एक्सप्लेन मैम रिगार्डिंग दिस, यस विकास आई डिड। हाँ बच्चे, चलो, ओके, बी, वाई बी, बच्चे बी कैसे, दिया बी, विकास बी, यस, द करेक्ट आंसर इज टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। तो टैरिफ इज बेसिकली इज अ व्हाट, इट्स अ टैक्स विल डिवाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है ये, है ना। यस, द करेक्ट आंसर इज बी। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड विकास। चलो, नाउ हायरार्की ऑफ रोल्स ऑन नो बेल फॉर उमर खालिद, ठीक है। अब यूपीएससी के कंटेक्स्ट से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज प्रॉपर्ली, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, उसी कंटेक्स्ट से, उसी रेलेवेंस के साथ विल कवर दिस न्यूज, ठीक है। अब इमेजिन करो कि अ यंग पर्सन नेम्ड उमर खालिद, ठीक है, जिसको अक्यूज किया गया है फॉर अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम, ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट है इन वायलेंट क्लैशेस, ठीक है। अब ये केस इतना ज्यादा सीरियस है कि स्पेशल कोर्ट ने डिनाई कर दी है उन्हें बेल देने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट ही मस्ट स्टे इन कस्टडी व्हाइल द ट्रायल प्रोसीड्स, राइट। तो दिस आर्टिकल इज नॉट अबाउट वेदर उमर खालिद इज लाइक शुड गेट बेल और नॉट, राइट, बल्कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं इन इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में,
ठीक है, पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यूपीएससी के लिए बना है। सो मेक श्योर दैट whatever आई एम डिलीवरिंग यू टू, राइट, मेक श्योर कि उसका हर एक वर्ड, हर एक कीवर्ड इज रिटन इन योर नोटबुक, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्या क्या बेसिकली फॉर्मेट आ सकता है रिगार्डिंग दिस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कवर विद यू, ठीक है। अब ये जो कंटेक्स्ट है, tariff is the tax which is imposed on imported goods like USD on India. Yes विकास, वेरी गुड। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है, और ये जो कंटेक्स्ट है, जो बिहेवियर है, राइट, ऑफ बेसिकली पीपल इन्वॉल्व, ठीक है, क्यों मैटर करता है ये कोर्ट में डिसाइड करने के लिए बेल में, ठीक है। पहले तो आप ये समझते हैं कि बेल होती क्या है, ठीक है। तो बेल इज व्हेन कोर्ट अलाउज ऑन अक्यूज पर्सन टू गेट फ्री टेम्पररली, ठीक है, जबकि ट्रायल चल रहा होता है, ऑनगोइंग होता है ट्रायल, तो दिस यूजुअली अंडर सर्टेन कंडीशन इट हैपेंस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम इन जेल, ठीक है, उन्हें कुछ टाइम के लिए द ट्रायल इज ऑनगोइंग, उन्हें फ्री किया जाता है, बट इट इज टेम्पररली, ठीक है, सबको पता है ये चीज। Normally in India's legal system, bail is supposed to be given unless there is a strong reason not to, ठीक है, जैसे कि there is this fear कि accused might like run away, या फिर basically temperament हो सकता है against the evidences, या फिर influence जो है वो risky हो सकता है witnesses का, ठीक है, और या फिर public order जो है वो basically it is like there are potential to disrupt this public order again, ठीक है, या फिर वो society के लिए harmful है, ठीक है, on this basis only हमारा जो है बेल जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। अब the idea is that nobody should be punished before being proven guilty, ठीक है, unless there is real danger that is letting them free, ठीक है। अब उमर खालिद के केस में एग्जैक्टली हुआ क्या है, what is the problem going on, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो उमर के केस में क्या हुआ है कि कोर्ट ने डिसाइड किया है कि उनको बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में तीन तीन चीजें यहाँ पे पॉइंट की गई है। पहले तो रोल और कंडक्ट इन द वायलेंस, ठीक है, रोल और कंडक्ट, ठीक है, वायलेंस में क्या क्या चीजें होती है, राइट, दैट विल बी डिस्कस्ड है, ठीक है। तो व्हेन द पर्सन एक्टिवली प्लान या फिर इनकरेज और पार्टिसिपेट इन रॉन्ग मैटर्स, ठीक है, someone who just happened to be a present is in different situation from someone who basically instigated or organized disorder, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे हायरार्की ऑफ रोल्स के बारे में, ठीक है। हायरार्की में क्या बात करेंगे कि अगर there are multiple people, ठीक है, who are involved in such cases, वहां पे हायरार्की क्या है, who is more responsible for that act, ठीक है। सो कोर्ट्स एग्जैक्टली लुक एट वेदर पर्सन वाज लीडर, या फिर वो कोई ऑर्गेनाइजर था, या फिर कोई स्पीकर था, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर था, ठीक है, कोई भी हार्मफुल इवेंट है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो बेसिकली कैटेगराइज्ड, ठीक है, वेदर दे वर बेसिकली बायस्टैंडर और दे वर माइनर पार्टिसिपेंट, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली कमिंग इन हायरार्की, ठीक है, कि क्या रोल प्ले करते हैं इन दैट इवेंट दोज पीपल, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एविडेंस, और उसके बाद रिस्क असेसमेंट, एविडेंस और रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो इन तीन चीजों के बारे में दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, और ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस JNU रिसर्च स्कॉलर हु इज इन जेल सिंस 2020 एंड द केस इज बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फंडामेंटल राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, यस एग्जैक्टली। सो इसीलिए दिस केस इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है, और ये बेल वाला इशू इज आल्सो सेंसिटिव फॉर द यूपीएससी, ठीक है, और उसी के कंटेक्स्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एज ए सेड, I bring stories to you so that you can have impact in your mind, कि तुम्हें याद रहे longer term के लिए। But UPSC और any government examination doesn't want drama, ठीक है, उन्हें मतलब है कीवर्ड से, उन्हें मतलब है एनालिटिकल क्वेश्चन से, and that what UPSC and any examination is actually focusing on, ठीक है। But I bring stories to you, I bring basically history and background to you, ताकि तुम्हें चीजें याद रहे, ठीक है। कहानी जब समझते हैं तो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। So that's exactly how I'm bringing my stories to you। अच्छा, तीन कहानियां हमें समझ में आएंगी। रोल ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करेंगे, हायरार्की रोल्स के बारे में बात करेंगे, एविडेंसेस और रिस्क असेसमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि कोर्ट ने रिफ्यूज करा है बेल देने के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि दे डज नॉट लाइक ऑटोमेटिकली मीन बेल इज नेवर गिवन टू पीपल इन सच केसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जजेस मस्ट केयरफुली एग्जामिन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट और उसके रिस्क क्या क्या होंगे, फैक्टर्स क्या क्या होंगे सोसाइटी में, राइट। एंड दिस आल्सो रिमाइंड्स रीडर्स की जो कोर्ट्स होते हैं, राइट, दे मस्ट बी कॉशियस बट दे शुड आल्सो बी फेयर, ठीक है। सो लीगल सिस्टम ट्राइज टू बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी विद सोसाइटी सेफ्टी, ठीक है। इफ समवन ट्रूली लाइक प्लेड अ सेंट्रल या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उन्होंने वायलेंस में, राइट,
So releasing them prematurely could basically endanger public order or basically harmful भी हो सकता है for the investigation also, right? So these are the measure basically what court looks at, right? और उसी के साथ साथ में someone with basically peripheral involvement they'll be also treated differently, है ना? तो इसीलिए आसान शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो क्या बात हो रही है, इस न्यूज में बात हो रही है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही है कि कोर्ट शुड डिसाइड ऑन बेल नॉट मेरली बेस्ड ऑन द चार्जेस बट केयरफुली कंसीडर करना चाहिए कि जो भी इंसान है, राइट, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो अगर उसको रिलीज किया जाता है तो क्या वो हार्मफुल होगा सोसाइटी के लिए या फिर किसी भी लीगल प्रोसेस के लिए, ठीक है? तो उमर खालिद के केस में भी यही चीज थी, द कोर्ट रिफ्यूजल बेल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ हिज alleged इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, reflecting principle that serious risk can justify stricter decisions also, right? So on the basis of these things his bail is basically rejected, ठीक है? अब प्रॉपरली एग्जैक्टली अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, पहले उससे पहले हम समझेंगे कि मैटर क्यों करता है, व्हाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज। चलो तो हम पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि ये कवर करेगा GS2, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21, क्रिमिनल जस्टिस, एक एक के बारे में बात करेंगे तीनों चीजों का। फिर उसके बाद एथिक्स, ऐसे और एथिक्स में इट इज इंपॉर्टेंट लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी और जुडिशियल रीजनिंग के बारे में भी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एज वन ऑफ द स्टूडेंट आल्सो सेड नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स आल्सो, ठीक है? सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू राइट द डिलेमा व्हेनेवर यू आर फेसिंग एनी सिचुएशंस, ठीक है? चलो अब ये तो समझ में आ गया कि GS2 में हम इसके बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम बेल राइट के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 21 राइट टू लिव लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है? और जुडिशियल प्रोसेस के बारे में होगा, क्रिमिनल जस्टिस के बारे में होगा कि कोर्ट्स कैसे बेल देती है और रिफ्यूज कर देती है बेल पे, तो किस किस रीजन की वजह से रिफ्यूज करती है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड हियर। बैकग्राउंड समझते हैं कि यहाँ पे न्यूज बात क्या कर रही है, तो यहाँ पर न्यूज ये कह रही है कि उमर खालिद वाज डिनाइड बेल, ठीक है? सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा था एंड ही वाज लिंक्ड टू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, है ना? अब ये इश्यू बेसिकली गिल्ट या फिर इनोसेंस का नहीं है बिकॉज दैट विल बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द ट्रायल। इश्यू है यहाँ पे कि ही शुड बी रिलीज फ्रॉम जेल व्हाइल द ट्रायल इज स्टिल गोइंग ऑन नॉट, ठीक है? सो दिस मेक्स केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बेल लॉ क्या होता है, पर्सनल लिबर्टी क्या होते हैं, जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या होते हैं, पब्लिक ऑर्डर्स कैसे होते हैं, ठीक है? अब बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ठीक है? बट ये हर बार की कहानी सॉरी नहीं है, ठीक है? अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि क्रिमिनल लॉ में courts generally follow this idea that a person should not be kept in jail for long unless and until it is necessary। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक एक्यूज पर्सन को बेसिकली ही इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until proven guilty, जब तक उसका गुनाह कबूल नहीं हो जाता he'll be guilty, right? So this is why jail before conviction affects, ठीक है? क्या अफेक्ट करता है? फ्रीडम अफेक्ट करता है, रेपुटेशन अफेक्ट करता है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट करता है, राइट? सो नॉर्मली बेल बेसिकली इज ग्रांटेड, तो फिर अगर बेल ग्रांट हो जाती है तो हर बार मतलब ऐसा में कुछ कुछ केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि जो बेल होती है वो कभी कभी डिनाई भी हो जाती है, जैसे केस वाले केस में। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए है बिकॉज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डोंट एस्केप रियलिटी, राइट? दे अंडरस्टैंड इट, right? Those decision makers understand it. Bail can be refused if the court believes that releasing the accused may harm public safety, या फिर after the investigation they are going to mislead the evidences also and it could lead to tampering with evidences also, encourage हो सकता है in further violence also, right? So the rule is bail but exception exists in serious cases, ठीक है? इसी वजह से there are like these are the reasons that basically denied the this denied of bail was not happening, ठीक है? अच्छा, अब हमने तीसरी क्या बात करी थी? हमने तीसरी यहाँ पर बात करी थी हायरार्की की, ठीक है? तो रोल ऑफ कंडक्ट का कुछ समझ में आ चुका होगा। हायरार्की की बात करेंगे तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हायरार्की, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये चीज बताई गई है, मेंशन की गई है दैट नॉट एवरीवन इन्वॉल्व इन क्राइम प्लेज द सेम रोल, ठीक है? हर किसी का इन दैट केस इज बेसिकली इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वन पर्सन इन दैट एक्ट मे बी द मेन प्लानर या फिर ऑर्गेनाइजर, ठीक है? अब दूसरा आदमी, ठीक है, बिल्कुल अलग से हट के बात करते हैं, दैट कैन बी बायस्टैंडर आल्सो, बट इन द आईज ऑफ लॉज द वन हु इज स्टैंडिंग देयर एंड बेसिकली सीइंग द वायलेंस, ठीक है, वो भी गुनहगार हुआ, बट क्या उन दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए? सो दिस इज व्हाट हायरार्की इज, ठीक है? अनदर मे बी अ स्पीकर या फिर वो बेसिकली इट दैट कैन बी अ इंस्टिगेटर एज वेल, राइट? या फिर जो दूसरा इंसान है वो कोई फॉलोअर हो सकता है, कोई माइनर पार्टिसिपेंट हो सकता है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर ये बात की गई है दैट कोर्ट मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज रोल्स, राइट? तो इसी के लिए यहाँ पे इस चीज को बोला गया है हायरार्की ऑफ रोल्स, ठीक है? अब ये बेल के लिए मैटर क्यों करता है? क्योंकि अ पर्सन हु प्लान्ड और डायरेक्टेड वायलेंसेस, राइट, इज सीन एज मोर एंड मोर डेंजरस,
ठीक है, अ पर्सन विद अ माइनर रोल मे बी ही मे बी अ लेस ऑफ थ्रेट। तो उमर खालिद के केस में द कोर्ट बिलीव्ड दैट ही alleged role was not minor, he was not just present but had a larger role, right? इन इवेंट में उसका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए कोर्ट को लगा कि he is not appropriate at this stage, इसीलिए उन्हें जो है बेल नहीं दी गई है, राइट? अब हायरार्की की बात कर ली हमने, ठीक है, अब बात करेंगे बेल वर्सेस कस्टडी की, ठीक है। अब अगर हम बेल वर्सेस कस्टडी की बात करते हैं तो ये जो है डिफरेंसेस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। बेल की बात करते हैं तो बेल क्या होता है, टेम्पररी फ्रीडम दी जाती है, ट्रायल कंटिन्यू में रहेगा, ठीक है, और एक्यूज्ड को बेसिकली कुछ कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है विटनेस पे, कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है वहां पर, है ना। और कस्टडी की बात करें, अक्यूज जो है वो जेल में रहेगा, ठीक है, और दिस इज यूज व्हेन द कोर्ट फील्स रिलीज में बी रिस्की, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए भी, खुद के लिए भी, और फॉर दिस केस इज वेल, ठीक है। तो यही इस आर्टिकल में यही बात समझाई गई है कि कस्टडी इज यूज नॉट जस्ट एज पनिशमेंट बट बेसिकली इन प्रिवेंटिव मेजर्स आल्सो इन सीरियस केसेस आल्सो, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों ने यहाँ पे बात भी की थी आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, है ना, तो क्या क्या बात की गई है कि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। सो व्हाट एग्जैक्टली आर्टिकल 21 से सबको पता है, बहुत बार मैंने रिपीट किया है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, है ना, पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पर क्या आर्टिकल 21 अनलिमिटेड है? नहीं। तो कोर्ट्स हैव क्लियरली सेड कि लिबर्टी जो है वो प्रेशियस है, लेकिन लिबर्टी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज, ठीक है। इफ देयर इज अ सीरियस थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर देन इट कुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो अगर क्राइम जो है इन्वॉल्व है इन लार्ज स्केल वायलेंस, तो इन्वेस्टिगेशन जो है इट मे बी अफेक्टेड आल्सो, सो देन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर अलाउड इन दिस केस। सो दिस इज एग्जैक्टली द बैलेंस कोर्ट्स ट्राई टू मेंटेन, राइट। सो इसीलिए वी कैन से दैट आर्टिकल 21 इज नॉट अनलिमिटेड, ठीक है। अब जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जजेस डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंसेस के बेस पे, रिस्क के बेसिस पे। यहाँ पर इमोशंस का कोई काम नहीं है, पब्लिक प्रेशर का कोई काम नहीं है, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, राइट, कोर्ट डजंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे बेल के केसेस में क्या होता है, इन बेल केसेस, राइट, जजेस क्या क्या देखते हैं, जज देखते हैं नेचर ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, पार्टिसिपेंट कितना ज्यादा है, ठीक है, सिवियरिटी ऑफ द वायलेंस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, एक्यूज का रोल कितना है, कैसा है, पॉसिबिलिटी ऑफ बेसिकली रिपीटिंग द ऑफेंस, है ना, और इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पर। तो बेल इज नेवर नेवर ऑटोमेटिक, ठीक है, स्पेशली जब ऐसे सीरियस केसेस आते हैं, राइट। सो अब इसके बारे में बात करेंगे पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी के मैटर के बारे में, ठीक है। तो जब भी केस इन्वॉल्व करता है हमारे राइट्स में, कम्युनल वायलेंसेस में, या फिर लार्ज स्केल पब्लिक डिसऑर्डर में, तो कोर्ट जो है वो हमारा बेसिकली एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रिलीजिंग अ की एक्यूज्ड, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे बेसिकली इट इज लाइक रेजिनेटिंग टेंशन ऑल्सो, ठीक है, गलत सिग्नल जा रहा है सोसाइटी में, है ना, और अफेक्ट करेगा जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है इन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कौन ट्रस्ट करेगा अगर बेसिकली इजीली लोगों को बेल दी जाएगी तो, है ना। सो दिस इज व्हाई दिस एडिटोरियल इज बेसिकली दे आर लाइक स्ट्रेसिंग द पब्लिक सेफ्टी इज अ लेजिटिमेट कंसर्न इन है, ठीक है। हम इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट देन अगेन वी हैव टू लुक अप टू द सोसाइटी एज वेल, ठीक है, वो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे। अगर कोई एक्ट अभी हो रहा है तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट वी विल फेस बिकॉज ऑफ दैट एक्शन, ठीक है। तो उन सारी चीजों को जनरलाइज करने के बाद ही बेसिकली बेल का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एडिटोरियल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर कहानी ये बताई जा रही है कि बेल शुड नेवर बी गिवन, ठीक है। एडिटोरियल इज नॉट सेइंग कि बेल ऐसे कभी दी ही नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ये बात नहीं है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेल का डिसीजन जो होता है वो थॉटफुल होना चाहिए और रोल बेस्ड होना चाहिए और रिस्क बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और कोर्ट को बेसिकली देखना चाहिए कि प्रोटेक्ट लिबर्टी क्या होता है, ठीक है, अगर प्रोटेक्शन कर रहा है लिबर्टी की तो, और बेसिकली अगर बात करें तो सोसाइटी प्रोटेक्शन के बारे में भी देखना चाहिए। तो जो डिफरेंसेस है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बेसिकली एनालाइज करने चाहिए, ठीक है, एंड दे शुड अवॉइड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिकली डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं, एंड इन दिस केस आल्सो दिस इज हाउ द डिसीजन हैज बीन टेकन, ठीक है। अच्छा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या कहानी है, ठीक है, किस किस बेसिस पे हमारी जो बेल है वो डिनाई हुई है और डिनाई होती है, राइट। सो दिस इज द आइडिया दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। आई एम सेइंग इट अगेन, यूपीएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन डजंट वांट ड्रामा इन देयर, ठीक है। उन्हें मतलब है कीवर्ड से, उन्हें मतलब है उनके कंसेप्ट से, एनालिटिक अप्रोच से। सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दोस न्यूज इन दैट फेज ओनली, ठीक है। चलो,
आई होप इस एडिटोरियल के तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ चुके होंगे एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव एंड आई वांट आंसर्स क्विकली क्विकली क्विकली, बिना ही वक्त जाया करें जल्दी से क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर्स दीजिए, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। इतना समय कैसे लगा सकते हो आप इसके लिए? चलो, सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिव्यम सी, ओके वेरी गुड, ये तो इसमें सोचना भी नहीं चाहिए। दिया प्रदीप सी, ओके। इतना ऐसे क्वेश्चंस में आप इतना कैसे सोच सकते हो? इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे बेसिकली राइट टू लाइफ होता है, डिग्निटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, राइट, एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ऑल दीज कम्स अंडर दिस आर्टिकल। सी विकास, ओके। बच्चे इतना टाइम थोड़ी ना लगाओगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे आर्टिकल 21 दिखता है, ठीक है, तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एकदम से क्लिक करो उस पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following best describe judicial discretion? अभी बताया मैंने, judge acting on public opinion, judge acting arbitrarily, judge deciding based on law and facts of each case, judge following executive instructions. अभी just अभी कहानी सुनाई मैंने, है ना? I mentioned this word. Okay, and one more thing, whatever keywords I'm bringing up to you, ठीक है, try to use them in examples also, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ साथ में अभी से एनालाइज करना शुरू कर दो और उन एग्जांपल्स को यूज करना शुरू कर दो, तभी तुम आगे तक याद रखोगे उन वर्ड्स को, एंड स्पेशली वो पीपल हु आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर 2027, ठीक है। तो अगर तुम पीवाईक्यूज यहाँ से एग्जैक्टली कर ही रहे हो, सी सी सी, ठीक है। बाकी यस बच्चे, to make sure that you are using these words also, ठीक है। So yes, the correct answer is what? C, judge deciding based on law and facts of each case, ठीक है। वेरी गुड दिव्यम बच्चे। चलो अब अपनी अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। Okay. Now Rajnath Singh commissions ICGS pollution control vessel Samudra Pratap in Goa. Okay, very important news. तो एज यूजुअल कहानी के साथ में चलेंगे और उसके बाद हिस्ट्री के साथ में लिंक करेंगे, ठीक है। इमेजिन अ नेशन विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ सी टचिंग इट्स शोर्स, ठीक है, पोर्ट्स में भी और फिशिंग विलेजेस में भी, बीचेस में भी, एंड इज लाइक रिच मरीन लाइफ इज देयर, ठीक है। अब इमेजिन करो एक बहुत बड़ी शिप जो कैरी करती है ऑयल, ठीक है, और बेसिकली केमिकल गेट्स इनटू ट्रबल और वो पोल्यूशन सी में चला जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगी? इससे फिशेस हर्ट होंगी, ठीक है, और बेसिकली लाइवलीहुड भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक में आएंगी, कोस्टल कम्युनिटीज को प्रॉब्लम होगी, मरीन एनिमल्स का इशू यहाँ पे क्रिएट होता है, एनवायरमेंट का इशू यहाँ पे क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस। सो इस डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए एंड टू बेसिकली रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली, इफ वन हैपेंस, देन कंट्री नीड स्पेशल वेसल्स, है ना। So these ships are that are equipped to control clean up pollution in the sky, right? So in Goa, a coastal state on India's west coast, a big movement actually took place, right? To measure this gap, there is a movement that took place in Goa. So India's defense minister Rajnath Singh, right, he commissioned, matlab he is like formally put into service a new pollution control ship that is named as what? Samudra Pratap, ठीक है, समुद्र प्रताप, ठीक है, फॉर द इंडियन कोस्टल गार्ड, दैट इज आईसीजी, ठीक है। पहले पढ़ेंगे। ओके दिया, गॉट इट बच्चे। चलो अच्छा, तो क्या हुआ है कि द इंडियन कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट्स इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट, ठीक है। सो जैसे कि हमारी सिक्योरिटी हो गई, सेफ्टी हो गई और मरीन एनवायरनमेंट होगा, है ना। तो एज ट्रेड एंड शिप टैरिफ्स ग्रोज, सो डज द रिस्क ऑफ व्हाट? एक्सीडेंट का भी और उसके बाद स्पिल का भी। तो जो हमारी जो समुद्र प्रताप जो शिप है, राइट, वो हेल्प करेंगी कोस्ट गार्ड को पोल्यूशन में डिटेक्ट करने में जितना जल्दी हो सकता है, और कंटेन ऑयल स्पिल्स आल्सो बिफोर दे आर स्प्रेडिंग, राइट, कैरिंग इक्विपमेंट्स एंड टीम्स टू क्लीन द वाटर, राइट। सो दिस विल प्रोटेक्ट मैरीटाइम लाइफ एंड कोस्टल कम्युनिटीज एज वेल, ठीक है। सपोर्ट करेगा डिजास्टर रिस्पांस और एनवायरमेंट सेफ्टी एट द सी, ठीक है। तो आप बेसिकली समुद्र प्रताप को ऐसे ले सकते हैं जैसे कि वो एक स्पेशल सी एम्बुलेंस है फॉर द ओशन,
लोगों के लिए नहीं लेकिन इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस सेरेमनी टुक प्लेस एट बेसिकली मोर्मुगांव पोर्ट इन गोवा, राइट, जहां पे नए वेसल्स जो है फॉर्मली जो है हैंड किए जा रहे हैं टू दी कोस्ट गार्ड को, ठीक है। सो द डिफेंस मिनिस्टर हाईलाइटेड कि दिस इज अ बूस्ट टू इंडियाज कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सीज, ठीक है, स्पेशली जितने भी हमारी मैरीटाइम ट्रैफिक है, ठीक है, जो कि इंक्रीज हो रहा है विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो उस चीजों को मेजर करने के लिए दिस इज समथिंग ये बेसिकली टेकिंग प्लेस, ठीक है। आसान शब्दों में कहा जाए तो क्या बात हो रही है, इंडिया इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स ओशन, है ना, और उसका कोस्ट लाइन फ्रॉम पोल्यूशन बाय कमिशनिंग अ न्यू पोल्यूशन कंट्रोल शिप, ठीक है, जिसका नाम है समुद्र प्रताप, ठीक है, फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड। सो ये शिप बेसिकली हमें हेल्प करेगी रिस्पॉन्ड करने के लिए, जैसे कि हमारा ऑयल स्पिल हो गया या फिर जितने भी मरीन पोल्यूशन है, ठीक है, ताकि वो जल्दी से डिटेक्ट हो सके और इजीली इफेक्ट हो सके, राइट, सेफ गार्ड हो सके हमारा मरीन एनवायरमेंट, कोस्टल कम्युनिटीज, राइट। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस न्यूज मोर डीपली, पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ये जो न्यूज है कनेक्ट किस किस पेपर से में कर रही है। तो दिस न्यूज इज कनेक्टेड टू GS-2, ठीक है, GS-3 SC और एथिक्स, गवर्नेंस और रोल ऑफ ICG एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कैसे कैसे ये हेल्प करेगा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या क्या पोल्यूशन होते हैं व्हेन ऑयल स्पिल्स इन द सी, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, राइट, व्हाट एग्जैक्टली फिशेस बेसिकली व्हाट हैपेंस, व्हाट अमाउंट ऑफ बेसिकली कैजुअलिटीज वी आर सीइंग, ठीक है। उसके बाद में एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, एससी और एथिक्स के बारे में यहाँ पे एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, राइट। ऑल दीज थिंग्स विल बी आंसर बेसिकली अंडरस्टूड हियर। चलो अब पहले ही बात करेंगे कि समुद्र प्रताप है क्या, और दूसरा ये इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है, राइट, एंड व्हाई इट इज बेसिकली ब्रॉट टू अस, ठीक है, कहानी क्यों है ये, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये करते क्या है, तो बेसिकली समुद्र प्रताप इज अ पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, ठीक है, कोई बेसिकली वॉरशिप नहीं है, ये सिर्फ एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। अब पोल्यूशन कंट्रोल वेसल काम क्या क्या करेगी, तो इसको डिजाइन किया गया है ऑयल स्पिल को डिटेक्ट करने के लिए सी में, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए जो इतने भी हमारे ऑयल स्प्रेड है, ठीक है, या फिर हमारे कंटेनर्स है उनको क्लीन करने के लिए जो तो हमारा पोल्यूटेड वाटर है, ठीक है, हैंडल करने के लिए हमारा केमिकल और हैजार्डस वेस्ट जो है जो भी लीक हो रहा है, राइट, सपोर्ट किसमें करेगा, एनवायरमेंटल रेस्क्यू ऑपरेशंस में सपोर्ट करेगा। अब ये बात करेंगे कि ऑयल स्पिल जो है वो इतने डेंजरस क्यों होते हैं, तो जो ऑयल स्पिल्स होते हैं वो बेसिकली दे किल्स फिशेस, टर्टल्स, सी बर्ड्स, ठीक है, डैमेज करता है हमारा कोरल रीफ्स और बेसिकली मैनग्रोव्स, राइट। सो दिस मेक्स फिशिंग इम्पॉसिबल फॉर मंथ्स एंड इवन फॉर ईयर्स ऑल्सो, है ना, डिस्ट्रॉय करता है हमारा टूरिज्म, हमारा कोस्टल लाइवलीहुड, ठीक है, और एक बार अगर ये ऑयल स्प्रेड हो जाता है तो इसकी वजह से जो क्लीनिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम लोग अर्ली डिटेक्शन, राइट, अगर हम लोग फास्ट रिस्पॉन्स, इसीलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, और हम इस पे काम करना शुरू करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है उनको डिटेक्ट किया जाएगा, उनको सोल्व किया जाएगा, है ना, एंड दिस इज व्हाई समुद्र प्रताप हेल्प्स एग्जैक्टली इन दैट, ठीक है। आई होप कहानी समझ में आ चुकी होगी कि किस चीज के बारे में है, राइट। नाउ with this we'll end our current affair, and this is the homework and I want you to answer this in the comment section, ठीक है। So with this we'll end today's current affair, and if you want access of this PDF then you can get this PDF pinned in the comment section, and this task that I gave in the starting of the video and the question that I'm putting here, I want answers of you people in the comment section. With this we'll end today's class, and I'll see you at the same time. Thank you.